trauma. We're going to start trauma. So color red, most critically injured patient, immediate care is required. Okay. Yellow, less critically injured patient, in hospital treatment, delayed care is required. Green, ambulatory patient, no life or limb threatening injury. Black, dead, morbid patient, expectant treatment is required. The ATLS ABCDE protocol is followed. ATLS stands for Advanced Trauma Life Support. ACLS and BLS CAB protocol is followed. ACLS Advanced Cardiovascular Life Support. BLS is Basic Life Support. Okay. ATLS 2018 protocol. Primary survey aimed at detecting and treating immediately life-threatening injuries. A for airway protection with cervical spine stabilization. B for breathing. Breathing includes ventilation and oxygenation. C for circulation with external hemorrhage control. D for disability. Brief neurological examination done to examine disability. E for exposure with environmental control. In all patients of trauma, cervical spine injury should be suspected. This is very important. Okay. All patients of trauma, cervical spine injury should be suspected. First step, cervical spine stabilization followed by ABCD. Okay. So we studied A for airway. Airway, we will clear the airway. We will chin, lift, jaw thrust, insertion of oropharyngeal or nasopharyngeal airway, definitive airway, oral endotracheal intubation with cuffed ET tube, endotracheal tube, breathing, ventilation plus oxygenation, assess breathing, assess rate and depth of breathing, oxygenation saturation, ventilation problems. In maxillofacial trauma, emergency airway, needle cricothyroidotomy, definitive airway, tracheostomy. In maxillofacial trauma, emergency airway, needle cricothyroidotomy, definitive airway, tracheostomy. Okay. Ventilation problem. Tension pneumothorax, ICD, intercostal drainage insertion. Massive pneumothorax, ICD. Massive pulmonary contusion, मैकेनिकल वेंटिलेशन. वेंटिलेशन प्रॉब्लम में टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या करेंगे, एसिडी देंगे, एसिडी करेंगे. मैसिव हीमोथोरैक्स में एसिडी करेंगे. मैसिव पल्मोनरी कंट्यूजन में मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे. सर्कुलेशन विथ हेमरेज कंट्रोल. सबसे पहले शॉक रोल आउट करेंगे. ओके. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक ब्लीडिंग, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा. अनस्टेबल वाइटल्स, अनस्टेबल्स वाइटल सजेस्टिव ऑफ शॉक. ओके. अनस्टेबल वाइटल्स क्या होता है? अनस्टेबल वाइटल्स मतलब पल्स रेट मोर देन 100 टाइम्स पर मिनट, बीपी लेस देन 100 mmHg. पल्स रेट मोर देन 100 टाइम्स पर मिनट, बीपी लेस देन 100 mmHg, इसको अनस्टेबल वाइटल्स बोलते हैं. मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेज करेंगे टू लार्ज वोर ग्रीन कैन्यूला IV देंगे. ठीक है. 2 large bore green cannula IV देंगे. ओके. देन ब्लड फॉर क्रॉस मैचिंग. अकॉर्डिंग टू ATLS 2018, 1 liter of warm isotonic crystallite to be given in adults. ओके. ATLS 2018 के अकॉर्डिंग 1 liter warm isotonic crystallite देंगे एडल्ट को. इन चिल्ड्रन मतलब लेस देन 40 kg, 20 ml per kg warm isotonic crystallite इज गिवन. दोनों में आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट देंगे. ठीक है. 1 लीटर, लेकिन 1 लीटर देंगे एडल्ट में, और चिल्ड्रन में जिनका एज लेस देन 40 kg है उनमें 20 ml पर kg के अकॉर्डिंग देंगे. 5 मेजर लोकेशन ऑफ ब्लड लॉस. ऑन द फ्लोर +4 में इसका निमोनिक ऑन द फ्लोर, एक तो एक्सीडेंट साइड पे हो जाएगा, बाकी 4 और है. एक्सटर्नल ब्लड लॉस एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट होगा ऑन द फ्लोर. 4 मोर है चेस्ट हेमोथोरैक्स. हेमोथोरैक्स में कैसे देखेंगे? CXR PA व्यू, CXR चेस्ट एक्सरे में PA व्यू करके देखेंगे. ठीक है. चेस्ट का हेमोथोरैक्स के लिए. एब्डोमेन में हेमोपेरिटोनियम में कैसे देखेंगे? फास्ट
फास्ट का फुल फॉर्म है फोकस असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। ओके, देन रेट्रोपेरिटोनियम, फिर मल्टीपल लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स। ओके, एक्सरे पेल्विस, इसमें एपी व्यू लेंगे। सी चेस्ट एक्सरे में पीए व्यू लेंगे और एक्सरे पेल्विस में एपी व्यू लेंगे। ओके, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन इन ट्रॉमा यूरिन आउटपुट है। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ टू डिटरमाइन फ्लूइड रिक्वायरमेंट CVP है, सेंट्रल वेनस प्रेशर। ठीक है ना। बेस्ट इंडिकेटर टिश्यू परफ्यूजन के क्या है, यूरिन आउटपुट। बेस्ट इंडिकेटर टू डिटरमाइन फ्लूइड रिक्वायरमेंट CVP, सेंट्रल वेनस प्रेशर। CT स्कैन इज नॉट डन एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे में CT स्कैन नहीं करते हम लोग। ओके, इन ऑन गोइंग शॉक, अगर किसी पेशेंट में शॉक लंबे टाइम तक चल रहा है तो उनमें ऑन गोइंग ब्लीडिंग मैनेज करेंगे। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रॉमा ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। अकॉर्डिंग टू ट्रॉमा ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल इनमें पैक्ड सेल प्लाज्मा और प्लेटलेट किस रेशियो में होता है, 1:1:1। ठीक है, अगर कोई ऑन गोइंग शॉक पेशेंट है उनमें ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे। इसमें प्लेटलेट, पैक्ड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट किस रेशियो में होता है, 1:1:1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरे इन ट्रॉमा पेशेंट, चेस्ट एक्सरे PA व्यू। ओके, एंड एक्सरे पेल्विस AP व्यू। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। डिसेबिलिटी में क्या चेक करेंगे, ब्रीफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, GCS ग्लासगो कोमा स्केल। ओके, देन GCS देखेंगे। पीपल चेक करेंगे फॉर साइज, रिएक्शन एंड इक्वालिटी। ओके, बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ सर्वाइवल, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। डिसेबिलिटी में क्या देते हम लोग देख सकते हैं लाइक ढंग से सेंसरी रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। तो बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स हम लोग देख सकते हैं। रिवाइज्ड GCS क्या है, 2014 वाला। इसमें आई ओपनिंग होते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं। ठीक है, आई ओपनिंग में स्पॉन्टेनियस है तो 4 नंबर साइन करेंगे। अगर लाउड वॉइस है तो E3 बोल देंगे। पेन प्रेशर है तो E2, नो रिस्पॉन्स E1। ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, अगर वेल ओरिएंटेड है, स्पीच वेल ओरिएंटेड है तो V5, डिसओरिएंटेड कन्फ्यूज है V4, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है V3, इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स V2, नो रिस्पॉन्स V1। ओके, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, ओबेइंग कमांड, अगर कमांड ओबे कर रहा है तो M6, लोकलाइजिंग पेन M5, विड्रॉ टू पेन, नॉर्मल फ्लेक्शन M4, एबनॉर्मल फ्लेक्शन M3, एक्सटेंशन पोस्चरिंग M2, नो रिस्पॉन्स M1। निमोनिक फॉर वर्बल रिस्पॉन्स, देखो आई वाला तो ईजी है, 4 है, याद हो जाएगा। वर्बल रिस्पॉन्स 1, कन्फ्यूज वर्ड साउंड्स नोवेयर। ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स के लिए निमोनिक है 1, कन्फ्यूज वर्ड साउंड्स नोवेयर। ओके, 1 हो गया V5। ठीक है, कन्फ्यूज मतलब कन्फ्यूज ये रहा V4, वर्ड इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स V3, साउंड्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड V2, नोवेयर नो रिस्पॉन्स ये V1 हो गया। फिर बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स के लिए है हुआ निमोनिक, ओबे लोकेलिटीज विथ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ओबे लोकेलिटीज विथ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, अगर कमांड ओबे कर रहा है तो M6 हो जाएगा। लोकेलिटीज, लोकलाइजिंग पेन है M5, विद तो विड्रॉल हो गया, नॉर्मल फ्लेक्शन, फिर एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, नो रिस्पॉन्स है तो 1 कर लेंगे। मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल कितना है, 4 इसका, 5 इसका, 6 इसका, टोटल ऐड करेंगे तो 15। मिनिमम स्कोर कितना है, E1 V1 M1, तो मिनिमम 3 होगा, मैक्सिमम 15 होगा, मिनिमम 3 होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हेड इंजरीज ऑन GCS स्कोर, ग्लासगो कोमा स्केल पे स्कोर के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करेंगे। अगर 13 to 15 है, GCS स्कोर 13 to 15 है तो माइल्ड हेड इंजरी है। ओके, अगर 9 to 12 है तो मॉडरेट हेड इंजरी है, और अगर लेस देन इक्वल टू 8 है तो सीवियर हेड इंजरी है। 13 to 15 माइल्ड, 9 to 12 मॉडरेट, लेस देन और इक्वल टू 8 सीवियर हेड इंजरी। चलो क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई,
आगे देखते हैं। VN in patients of tracheostomy non-testable elements no addition of extra score। जो नॉन टेस्टेबल एलिमेंट है उसके लिए कोई स्कोर नहीं देंगे। एग्जांपल E4 VNT M3 ओके, नो स्कोर शुड बी गिवन टू द नॉन टेस्टेबल कंपोनेंट। तो 9 हो जाएगा, 5 + 9 9 VNT हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 9 VNT है तो वो मार्क करेंगे, नहीं तो बस नॉर्मली 9 मार्क करेंगे, ठीक है। और लास्ट था एक फिफ्थ वन था एक्सपोजर विथ एनवायरमेंटल कंट्रोल। ओके, अब सेकेंडरी सर्वे में क्या देखेंगे, एम्पल हिस्ट्री चेक करेंगे। एम्पल हिस्ट्री फर्स्ट रिलेटिव्स। एम्पल हिस्ट्री में A फॉर एलर्जी, M फॉर मेडिकेशन, P फॉर पास्ट इलनेस प्रेगनेंसी, L फॉर लास्ट मील, E फॉर इवेंट्स रिलेटेड टू इंजरी। चलो ठीक है। सेकेंडरी सर्वे एग्जामिनेशन ऑफ हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में क्या देखेंगे, टू रूल आउट फ्रैक्चर्स एंड लेजिरेशन, ठीक है। नेक में रूल आउट नेक इंजरीज, चेस्ट में रूल आउट रिब फ्रैक्चर्स, एब्डोमेन में हम लोग क्या रूल आउट करेंगे, टेंडरनेस ब्रूजिंग एंड ऑल्सो टू इंसर्ट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ओके, पेशेंट्स विथ मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड। मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा पेशेंट में ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे। चेक मियाटस फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्लड। मियाटस चेक करेंगे ब्लड है या नहीं। अगर ब्लड नहीं होगा, इफ़ नो ब्लड देन यूरेथ्रल इंजरी इज एब्सेंट इन फॉलीज कैथेटर इंसर्शन कैन बी डन। फॉलीज कैथेटर इंसर्शन कब करेंगे, जब मियाटस में ब्लड नहीं होगा तो। एग्जामिनेशन ऑफ बैक। बैक के लिए लॉग रोल मेथड होता है, ठीक है, लॉग रोल मेथड। आइडियल नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड 5। आइडियल नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर लॉग रोल मेथड लाइक एग्जामिनेशन ऑफ बैक के लिए 5, मिनिमम नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड वाइल एग्जामिनेशन ऑफ बैक। जब हम लोग एग्जामिन करते हैं ना बैक को, उसी टाइम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं। एक्सट्रीमिटीज़, लुक फॉर डिफॉर्मिटी, क्रेपिटस एंड एनी एबनॉर्मल मूवमेंट तो रूल आउट फ्रैक्चर। एक्सट्रीमिटी में कोई एग्जामिन करेंगे, देखेंगे उसमें फ्रैक्चर है या नहीं। रिपीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ओके, रिवाइज ट्रॉमा स्कोर, ठीक है, इसका निमोनिक है GB रोड, डोंट गो टू दिस रोड, बस निमोनिक है ये। G फॉर ग्लासगो कोमा स्केल, B फॉर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, R फॉर रेस्पिरेटरी रेट। रिवाइज ट्रॉमा स्कोर में का क्या निमोनिक है, GB रोड, ग्लासगो कोमा स्केल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट। ट्रॉमा इंजरी सिवियरिटी स्कोर ट्रिस, ठीक है, इसमें ISS प्लस RM राम हो जाएगा, ठीक है। IS मतलब इंजरी सिवियरिटी स्कोर, ISS, ठीक है। फिर R4 हो जाएगा रिवाइज ट्रॉमा स्कोर मतलब GCS हो जाएगा, ठीक है। GB रोड हो जाएगा, ग्लासगो कोमा स्कोर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी रेट। फिर A फॉर एज, M फॉर मैकेनिज्म ऑफ इंजरी और ब्लंट ट्रॉमा है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, इस टाइप का, ठीक है। फिर मैंगल एक्सट्रीमिटी सिवियरिटी स्कोर MESS, मैंगल एक्सट्रीमिटी सिवियरिटी स्कोर MESS। इलाइजा इसका निमोनिक है, ठीक है। MESS का निमोनिक क्या है, इलाइजा। E फॉर एनर्जी दैट काउजेज द इंजरी, ठीक है, LI लिम्ब इस्कीमिया, S फॉर शॉक, A फॉर एज। चलो अब हेड इंजरी है, स्कल बेस फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन कौन सा स्कल बेस फ्रैक्चर है, एंटीरियर क्रैनियल फोसा फ्रैक्चर। Anterior cranial fossa fracture is the most commonly injured structure during head injury 70% टाइम्स में, ठीक है। मिडिल cranial fossa fracture 20%, posterior cranial fossa fracture 5%, anterior cranial fossa 70, middle cranial 20, posterior cranial 5. Anterior cranial fossa is mainly composed of frontal bone. एंटीरियर क्रैनियल फोसा फ्रंटल बोन, इसका निमोनिक है AF करके याद कर लो। एंटीरियर क्रैनियल फोसा फ्रंटल बोन, फ्रैक्चर लीड्स टू फ्रंटल लोब कंट्यूजन। ओके, मिडिल क्रैनियल फोसा मेनली कंपोज ऑफ टेम्पोरल बोन, मिडिल AF MT हो गया, एंटीरियर फ्रंटल मिडिल टेम्पोरल, तो ये टेम्पोरल लोब कंट्यूजन हो जाएगा, ठीक है। 7th and 8th क्रैनियल नर्व होता है टेम्पोरल लोब लाइक इस फ्रैक्चर में इंजर, ठीक है। पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा इज मेनली कंपोज ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, तो ऑक्सीपिटल लोब कंफ्यूजन हो जाएगा। इंटीरियर फ्रंटल टेम्पोरल, फिर मिडल
टेम्पोरल, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, ऑक्सीपिटल। तो इसका निमोनिक अगर बना है तो क्या बनेगा? फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, FTO, 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 ठीक है। इंटीरियर का फ्रंटल, मिडिल का टेम्पोरल और पोस्टीरियर का ऑक्सीपिटल। चलो ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ सेरेब्रिफॉर्म प्लेट इन एंटीरियर फोसा लीड्स टू CSF राइनोरिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। CSF राइनोरिया मतलब CSF फ्रॉम नोज, ओके। कब जब इंजरी होगा सेरेब्रिफॉर्म प्लेट में, एंटीरियर फोसा में, एंटीरियर फोसा के सेरेब्रिफॉर्म प्लेट में जब इंजरी होगा तो CSF राइनोरिया देखने को मिलेगा। एंटीरियर फोसा के सेरेब्रिफॉर्म प्लेट में जब फ्रैक्चर होगा, इंजरी बोल रहा हूँ सॉरी, एंटीरियर फोसा के सेरेब्रिफॉर्म प्लेट में जब फ्रैक्चर होगा तो CSF राइनोरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम, पैरालिसिस ऑफ 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल लोब से रिलेटेड है और ये मैंने बताया 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व टेम्पोरल लोब से रिलेटेड है। चलो ठीक है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली फ्रंटल स्केप, इसका निमोनिक है। मोस्ट कॉमनली कौन सा फ्रैक्चर होता है? एंटीरियर क्रेनियल फोसा। निमोनिक है इसका फ्रंटल स्केप। कैसे याद करेंगे? फ्रंटल स्केप, फ्रंटल लोब कंट्यूजन, ओके। फ्रंटल लोब कंट्यूजन हो जाएगा एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। E फॉर एपिस्टैक्सिस, S फॉर सब कंजक्टाइवल हेमाटोमा, C फॉर CSF राइनोरिया, A फॉर इंसोम्निया, लॉस ऑफ स्मेल, P फॉर पेरिऑर्बिटल हेमाटोमा, जिसको रैकून आइज बोलते हैं। रैकून आइज है ना, इसका मतलब एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर। चलो ठीक है भाई। कैसे याद करेंगे? फ्रंटल स्केप, फ्रंटल लोब कंट्यूजन एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में होगा। E फॉर एपिस्टैक्सिस, लाइक नोज ब्लीडिंग, एपिस्टैक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग होता है। S फॉर सब कंजक्टाइवल हेमाटोमा, CSF राइनोरिया, इंसोम्निया, पेरिऑर्बिटल हेमाटोमा, ओके। मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन लीड्स टू ड्यूरल लेजिरेशन। चलो, टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर होगा मिडिल क्रेनियल। क्लिनिकल फीचर क्या है? CSF ऑटोरिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा तो CSF कान से बाहर आएगा, किसमें? मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में। चलो भाई ठीक है। ऑटो राइनोरिया, पैराडॉक्सिकल राइनोरिया, एफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगा तो ऑटो राइनोरिया होगा या पैराडॉक्सिकल राइनोरिया होगा। बैटल साइन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर इकाइमोसिस। बैटल साइन कहाँ देखने को मिलेगा? पोस्टीरियर ऑरिकुलर इकाइमोसिस। चलो ठीक है। हीमोटिम्पैनम, 7th and 8th नर्व अफेक्टेड, ओके। टेम्पोरल लोब कंट्यूजन। चलो, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, इसमें कौन सा लोब होगा? ऑक्सीपिटल लोब कंट्यूजन होगा। चलो ठीक है भाई। क्या होगा इसका क्लिनिकल फीचर्स? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का विजुअल डिस्टर्बेंस, 6 क्रेनियल नर्व इंजरी, जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम, जिसको वनडेड सिंड्रोम बोलते हैं। वनडेड सिंड्रोम में 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल इंजरी होता है। वनडेड सिंड्रोम में 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व का इंजरी होता है और बेसिलर आर्टरी इंजरी। क्लिनिकल फीचर्स क्या है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर का? विजुअल डिस्टर्बेंस, 6th क्रेनियल नर्व इंजरी, जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम, इसको वनडेड सिंड्रोम बोलते हैं, 9th, 10th, 11th क्रेनियल नर्व इंजरी, बेसिलर आर्टरी इंजरी। चलो ठीक है। टीरियन, टीरियन क्या होता है? द वीकेस्ट एंड थिनेस्ट पार्ट ऑफ स्कल। टीरियन इज द वीकेस्ट एंड थिनेस्ट पार्ट ऑफ स्कल। चलो ठीक है भाई। एक्स्ट्रा ड्यूरल वर्सेस सबड्यूरल हेमाटोमा, देखो कैसे याद करेंगे? पैड लिखेंगे अंदर से बाहर, ठीक है। ये डी वाला हो गया ड्यूरा मैटर, ये एरेक्नोइड मैटर और ये पाया मैटर, ठीक है। देखो, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा है मतलब कौन सा मैटर के बाहर? ड्यूरा मैटर के बाहर, एक्स्ट्रा ड्यूरल, ठीक है। ब्लड कलेक्शन बिटवीन स्कल एंड ड्यूरा मैटर, इसका बाहर स्कल है ना, ड्यूरा मैटर के बाहर, तो उसके बीच में ब्लड कलेक्ट है, ठीक है। अब SDH मतलब सब ड्यूरल हेमाटोमा, सब ड्यूरल मतलब ड्यूरा मैटर के नीचे, मतलब ब्लड कहाँ कलेक्ट है? एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में, ब्लड कलेक्शन बिटवीन ड्यूरा एंड एरेक्नोइड मैटर। चलो ठीक है भाई। अब EDH एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा का देखते हैं फीचर्स। ब्लड कलेक्शन बिटवीन स्कल एंड ड्यूरा मैटर, ट्रिवियल ट्रॉमा, टीरियन में इंजरी होगा लीडिंग टू एंटीरियर डिवीजन, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर,
आर्टेरियल ब्लीडिंग होगा। डज नॉट क्रॉस सुचर लाइन, ADH डज नॉट क्रॉस सुचर लाइन। ल्यूसिड इंटरवल इज पॉजिटिव, ओके। वन एपिसोड ऑफ ल्यूसिड इंटरवल किसको बोलते हैं? वन एपिसोड ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन टू एपिसोड्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस। चलो ठीक है भाई। बाई कॉन्वेक्स लेंटिकुलर शेप हाइपरडेंस लीशन, बाई कॉन्वेक्स लेंटिकुलर शेप लीशन देखने को मिलेगा किसमें? ADH में। ADH में बाई कॉन्वेक्स लेंटिकुलर शेप लीशन देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है ADH में? NCCT। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन ADH एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, NCCT। चलो अब CDH में आ जाता है, सबड्यूरल हेमाटोमा। ब्लड कलेक्शन बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड। चलो ठीक है। सिग्निफिकेंट ट्रॉमा रिक्वायर्ड, इंजरी ऑफ कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन रप्चर, इंजरी ऑफ कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन रप्चर हो जाता है, ठीक है। वेनस ब्लीडिंग जनरली सीन इन एल्डरली में देखने को मिलता है CDH। क्रॉसेस द सुचर लाइन क्रॉस कर जाएगा। कॉन्केवो कॉन्वेक्स, देखो ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लीजन इशन हाइपरटेंस लीजन होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस NCCT, इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है, CDH का प्रोग्नोसिस पुअर होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो जाएगा NCCT। मैनेजमेंट क्या करेंगे भाई इन हेमाटोमा में? तो दोनों का मैनेजमेंट सेम है। ड्रेनेज वाया बर होल फॉर स्मॉल इंसिजन, ADH SDH हो कोई सा भी हो, इनका मैनेजमेंट क्या होगा? अगर स्मॉल इंसिजन है तो ड्रेनेज वाया पर होल हो जाएगा, ठीक है। और अगर लार्ज इंसिजन है तो क्रेनियोटमी करना पड़ेगा, दिमाग लाइक क्रेनियम को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, क्रेनियोटमी। चलो क्लियर है भाई। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, वाइड स्प्रेड एक्सोनल इंजरी शेयरिंग फोर्स इन बोथ हेमिस्फीयर, ओके। मोस्ट कॉमन साइट डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी का मोस्ट कॉमन साइट है लोअर वाइट मैटर, कॉर्पस कैलोसम, ब्रेन स्टेम। तीनों में होता है लेकिन लोअर वाइट मैटर में सबसे ज़्यादा होता है, फिर कॉर्पस कैलोसम में, फिर ब्रेन स्टेम में, ठीक है। लोअर वाइट मैटर इज द जंक्शन ऑफ वाइट एंड ग्रे मैटर, लोअर वाइट मैटर क्या होता है? जंक्शन ऑफ वाइट एंड ग्रे मैटर। चलो ठीक है। लोअर वाइट मैटर में क्या होता है? डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। इसके बाद लोअर वाइट मैटर के बाद कहाँ होगा? कॉर्पस कैलोसम में, फिर ब्रेन स्टेम में। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक वेजिटेटिव स्टेट क्या है भाई? डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक वेजिटेटिव स्टेट। NCCT इज नॉर्मल होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI, NCCT में नॉर्मल सब कुछ दिखेगा, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI होता है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में। इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। नेक इंजरी को हम लोग 3 जोन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी देखता हूँ आगे। 2 मोस्ट एनाटॉमिकल लैंडमार्क इन नेक इंजरीज आर प्लेटिज्मा, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। 2 लैंडमार्क क्या है नेक इंजरीज में? प्लेटिज्मा और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जोन्स ऑफ नेक इंजरी, 3 जोन होता है ना, 3 हॉरिजॉन्टल जोन्स होते हैं, ठीक है। जोन 1 किससे बोलते हैं भाई? जोन 1 बोलते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। देखो सुप्रास्टर्नल नॉच एंड क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच को वो क्या बोलते हैं? जोन 1, ठीक है। जोन 1 क्या हो जाएगा? सुप्रास्टर्नल नॉच और क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच को बोलेंगे जोन 1। जोन 2 क्या हो जाएगा? बिटवीन क्रिकोइड कार्टिलेज एंड एंगल ऑफ द मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल एंड क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच को बोलेंगे जोन 2। जोन 3 बिटवीन एंगल ऑफ मैंडिबल एंड बेस ऑफ स्कल, बिटवीन एंगल ऑफ मैंडिबल एंड बेस ऑफ स्कल, इसको बोलेंगे जोन 3। इंजरी टू जोन 1 हैज़ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटिड वेसल, इसोफेगस एंड ट्रैकिया। जोन 1 में अगर इंजरी होता है तो ज़्यादा मोर्टेलिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे डेलिकेट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे कि कैरोटिड वेसल्स, इसोफेगस और ट्रैकिया। जोन 1 में जो इंजरी होता है उसमें हाईएस्ट मोर्टेलिटी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटिड वेसल्स, इसोफेगस एंड ट्रैकिया। जोन 2 इंजरीज बहुत कॉमन होता है क्योंकि एंड मोस्ट सर्जिकली एक्सेसिबल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है। जोन 2 में इंजरीज बहुत कॉमन होता है, और अगर इस एरिया में इंजरी हो गया तो बहुत सर्जिकली एक्सेसिबल होता है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपोज एरिया होता है। चलो ठीक है भाई। अब थोरेसिक इंजरीज देखते हैं। मोस्ट कॉमन थोरेसिक इंजरी इज चेस्ट वॉल इंजरी, ठीक है। मोस्ट कॉमन थोरेसिक इंजरी इज चेस्ट वॉल इंजरी, ओके। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ इन ब्लंट थोरेसिक ट्रॉमा इज ट्रैकियोब्रैंकियल इंजरी। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ इन ब्लंट थोरेसिक ट्रॉमा इज
ट्रैकिया, ब्रोंकियल इंजरी। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट कॉमन थोरेसिक इंजरी, चेस्ट वॉल इंजरी। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ इन ब्लंट थोरेसिक ट्रॉमा इज ट्रैकिया, ब्रोंकियल इंजरी। ओके, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ इन पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा इज हीमोथोरेक्स। फिर इसके बाद आएगा पल्मोनरी लैजेशन। ओके ठीक है। मोस्ट कॉमन थोरेसिक इंजरी, चेस्ट वॉल इंजरी। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ इन ब्लंट thoracic trauma, trachea, bronchial injury. Most common cause of death in penetrating thoracic trauma, pneumothorax. इसके बाद आएगा pulmonary laceration. Most information, most common rib fracture in CPR, fourth sixth rib. ठीक है भाई, most common rib fracture in CPR fourth, fifth and sixth rib fracture होते हैं। अगर फर्स्ट, टेंथ और ट्वेल्थ, फर्स्ट, टेंथ, 11th, 12th रिब फ्रैक्चर है, इसका मतलब क्या है कि हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट है। ठीक है, इफ़ फर्स्ट, टेंथ, 11th एंड 12th रिब्स आर फ्रैक्चर्ड इट मीन्स हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट। चलो अब आगे देखते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स काउज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ वन वे वॉल्व एयर लीक। ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, जो वॉल्व है वो लीक हो जाता है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ वन वे वॉल्व एयर लीक। कोलैप्स ऑफ इप्सिलेटरल लंग होता है थोरेसिक, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में इप्सिलेटरल लंग कोलैप्स होता है। शिफ्ट ऑफ मीडियास्टाइनम, डिप्रेशन ऑफ डायफ्राम, कंप्रेशन ऑफ सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एंड फिर इससे क्या होगा, वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में वन वे वाल्व एयर लीक होता है, इप्सिलेटरल लंग कोलैप्स हो जाता है, मीडियास्टाइनम शिफ्ट हो जाता है, डिप्रेशन ऑफ डायफ्राम, इससे क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना के बाद इससे वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स में। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या देखने को मिलेगा टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, डिस्निया, टैकिपनिया, हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन्स ड्यू टू कंप्रेस्ड सुपीरियर वेना के बाद। ठीक है, ऑन परकशन हाइपर रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस किस में देखने को मिलेगा, परकशन पे, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में। ऑन ऑस्कल्टेशन एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड्स, absence of breath sounds and hyper resonance is seen in टेंशन न्यूमोथोरैक्स। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हाइपर रेजोनेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड्स आर सीन इन टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ओके, डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस होगा टेंशन न्यूमोथोरैक्स एंड फ्लेल चेस्ट। ठीक है, डायग्नोस कैसे करेंगे टेंशन न्यूमोथोरैक्स का, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होगा टेंशन न्यूमोथोरैक्स एंड फ्लेल चेस्ट। टेंशन न्यूमोथोरैक्स एंड फ्लेल चेस्ट में डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, याद रखना भाई, टेंशन न्यूमोथोरैक्स एंड फ्लेल चेस्ट में डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। मैनेज कैसे करेंगे, इंसर्शन ऑफ वाइड बोर नीडल थ्रू सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन MCL। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे टेंशन न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट को, तो वाइड बोर नीडल इंसर्ट करेंगे थ्रू सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन MCL। ठीक है, इन चिल्ड्रेन, insertion of wide bore needle through second intercostal space in MCL in children and fifth intercostal space in AAL in adults। MCL क्या है, देखो टेंशन न्यूमोथोरैक्स का मैनेजमेंट क्या है, वाइड बोर इंसर्शन। अगर चिल्ड्रन होगा तो कहाँ इंसर्ट करेंगे, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, और अगर एडल्ट होगा तो कहाँ इंसर्ट करेंगे वाइड बोर नीडल, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ठीक है, चलो भाई ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ICD इंसर्शन थ्रू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो एक फीचर इसका ले लिया एडल्ट वाला, एक फीचर चिल्ड्रन वाला ले लिया। एडल्ट वाला कौन सा फीचर लिया, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, चिल्ड्रन वाला कौन सा फीचर लिया, MCL मिड क्लेविकुलर लाइन। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है टेंशन न्यूमोथोरैक्स का, ICD इंसर्शन इंटरकोस्टल, ICD इंसर्शन थ्रू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन MCL इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ATLS इन चिल्ड्रन यही चीज़ है, ICD इंसर्टेड इन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। एडल्ट में कहाँ इंसर्ट करेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लाइटली एंटीरियर मिड एक्सिलरी लाइन। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, ICD इंसर्शन इन ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, ICD इंसर्शन इन ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ओके, चलो ठीक है भाई, क्लियर है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ओके, पेरिकार्डियल टेम्पोनाड, पेरिकार्डियल टेम्पोनाड
caused by sudden accumulation of blood into pericardial space secondary to penetrating trauma. Pericardial tamponade क्या है? Pericardial tamponade is caused by sudden accumulation of blood into pericardial space secondary to penetrating trauma. Penetrating trauma के बाद pericardial space में sudden accumulation of blood ये हो जाता है. ये काउज करता है क्या? पेरिकार्डियल टेम्पोनाड. पेरिकार्डियल टेम्पोनाड is caused by sudden accumulation of blood in pericardial space. Sudden accumulation of blood in pericardial space secondary to penetrating trauma. ये काउज करता है पेरिकार्डियल टेम्पोनाड. चलो ठीक है, क्लियर है. इसके बाद है बैक्सप्राइड. बैक्सप्राइड का निमोनिक है MDH. MDH का फुल फॉर्म मफल्ड हार्ट बीट्स. बैक्सप्राइड का क्या है निमोनिक? MDH. MDH का फुल फॉर्म है मफल्ड हार्ट साउंड्स, डिस्टेंडेड नेक साउंड्स, हाइपोटेंशन. बैक्सप्राइड क्या है भाई? MDH, मफल्ड हार्ट साउंड्स, डिस्टेंडेड नेक साउंड्स, हाइपोटेंशन. कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम टेंशन निमोथोरैक्स बाई हाइपररेजोनेंस एंड एब्सेंट ब्रेथ साउंड. बताया था ना कि टेंशन निमोथोरैक्स में हाइपररेजोनेंस और एब्सेंट ब्रेथ साउंड होता है. एक्सरे पेरिकार्डियल टेम्पोनाड को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टेंशन निमोथोरैक्स में? टेंशन निमोथोरैक्स में क्या होता था? हाइपररेजोनेंस एंड एब्सेंट ब्रीथ साउंड. ठीक है, तो इसमें हाइपररेजोनेंस नहीं होगा और ब्रीथ साउंड्स प्रेजेंट होगा. ठीक है, चलो. एक्सरे में इनलार्ज कार्डियक साइडो दिखेगा. ये दिख रहा है ना, इनलार्ज कार्डियक साइडो, ये रहा. ठीक है, इनलार्ज कार्डियक साइडो दिख रहा है. चलो भाई, क्लियर है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा? एको हो जाएगा. पेरिकार्डियल टेम्पोनाड का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? एको. चलो, ट्रीटमेंट में क्या है भाई? इमरजेंसी ट्रीटमेंट है निडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस. इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है? निडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सर्जिकल पेरिकार्डियोटमी. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पेरिकार्डियल टेम्पोनाड, सर्जिकल पेरिकार्डियोटमी. चलो ठीक है. फ्लेल चेस्ट. फ्रैक्चर ऑफ 2 or more than 2 consecutive ribs at 2 or more than 2 places. फ्लेल चेस्ट का डेफिनेशन क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा रिब्स का फ्रैक्चर 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पे. ठीक है. पार्ट ऑफ चेस्ट वॉल इज आइसोलेटेड लीडिंग टू पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन. फ्लेल चेस्ट लीड्स टू पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन. सेगमेंट moves in opposite direction of chest wall, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन. सेगमेंट जो है, जो टूटा हुआ सेगमेंट है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होता है. इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेशन फेलियर ड्यू टू पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन एंड वॉलंटरी स्प्लिंटिंग. बिकॉज ऑफ पेन देयर इज इंक्रीज वॉलंटरी स्प्लिंटिंग, मैकेनिकली इम्पेयर्ड चेस्ट वॉल मूवमेंट. चलो ठीक है. डायग्नोसिस क्लिनिकल बताया था ना, किसका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है? देखो, टेंशन निमोथोरैक्स एंड फ्लेल चेस्ट का डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है. टेंशन निमोथोरैक्स एंड फ्लेल चेस्ट का डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है. चलो ठीक है. सेगमेंट, चलो उसके बाद क्लिनिकली डायग्नोस करेंगे. ऑब्जर्व द पेशेंट एंड पैराडॉक्सिकल मूवमेंट. ठीक है. आस्क पेशेंट टू कफ, थोरेसिक कैविटी मूव्स इन, फ्लेल सेगमेंट मूव्स आउट. ओके. पेशेंट को क्या बोलेंगे? कफ करने के लिए. कफ करेगा तो थोरेसिक कैविटी अंदर जाएगा और फ्लेल सेगमेंट जो है बाहर आ जाएगा. ट्रीटमेंट क्या है? फ्लेल चेस्ट ओनली. अगर फ्लेल चेस्ट ही है तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे देंगे, एनाल्जेसिया, एपिड्यूरल, फिर फिजियोथेरेपी. अगर बस फ्लेल चेस्ट है तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे, एपिड्यूरल, एनाल्जेसिया दे देंगे और फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड कर देंगे. फ्लेल चेस्ट विथ रेस्पिरेटरी फेलियर है भाई, तो थोड़ा सीरियस हो जाता है कंडीशन. अगर फ्लेल चेस्ट है रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ तो इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कर देंगे. ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है. इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन फ्लेल चेस्ट. एब्डोमिनल ट्रॉमा. मोस्ट कॉमन इंजर्ड ऑर्गन इन ब्लड ट्रॉमा, एब्डोमेन. स्प्लीन followed by liver. Most common injured organ in blood trauma, abdomen. Spleen followed by liver. Most common injured organ in penetrating trauma, abdomen. लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में लीवर हो जाएगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. ब्लड ट्रॉमा में स्प्लीन, लीवर हो जाएगा. मोस्ट कॉमन इंजर्ड ऑर्गन इन गन
शॉट वुंड स्मॉल इंटेस्टाइन, चलो ठीक है। मोस्ट कॉमन इंजर्ड ऑर्गन इन गन शॉट वुंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन में जेजुनम हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली इंजर्ड बाउल इन ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन जेजुनम। मोस्ट कॉमन इंजर्ड ऑर्गन ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन स्प्लीन लिवर, लेकिन मोस्ट कॉमन इंजर्ड बाउल इन ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन जेजुनम। मोस्ट कॉमन इंजर्ड साइट इन डेसिलेशन इंजरी duodenojejunal junction. Most common injured site in deceleration injury duodenojejunal junction. Okay. Most common injured structure in seat belt injury mesentery. Most common injured structure in seat belt injury mesentery. First investigation done in blunt trauma abdomen. Fast का फुल फॉर्म है फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डन इन ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन। फास्ट का फुल फॉर्म है फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, चलो ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन स्टेबल पेशेंट ऑफ ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन CECT। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन स्टेबल पेशेंट्स ऑफ ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन CECT, चलो ठीक है भाई। फास्ट क्या है? फोकस असेसमेंट with sonography for trauma. Fast is emergency ultrasound done very fast, ठीक है, 2 से 4 मिनट में हो जाता है। 4 P's are evaluated in the sequence of फास्ट में 2 से 4 सीक्वेंस देखते हैं और 2 से 4 मिनट फास्ट 2 से 4 मिनट में हो जाता है और 4 P's इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट P है पेरिकार्डियल सैक सब सीफॉइड ट्रांसवर्स व्यू, ठीक है। पेरिकार्डियल सैक से कौन सा व्यू मिलते हैं? सब सीफॉइड ट्रांसवर्स व्यू, ओके। पेरीहिपैटिक रीजन राइट अपर क्वाड्रेंट लॉन्गिट्यूडनल व्यू, ठीक है। पेरीहिपैटिक रीजन से राइट अपर क्वाड्रेंट लॉन्गिट्यूडनल व्यू। पेरीस्प्लेनिक रीजन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट लॉन्गिट्यूडनल व्यू, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट लॉन्गिट्यूडनल व्यू, ओके। पेल्विस से सुप्रा प्यूबिक लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स व्यू, सुप्रा प्यूबिक लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स व्यू पेल्विस। 4 P's are the 4 views there in fast. 4 P's are the 4 views in the fast. ई फास्ट होता है एक्सटेंडेड फास्ट, ठीक है। इसमें 6 व्यू होता है, 4 P's प्लस 2 और ऐड हो जाता है। 4 P's क्या क्या है? पेरिकार्डियल सैक सबसिफॉइड ट्रांसवर्स व्यू, पेरीहिपैटिक रीजन राइट अपर क्वाड्रेंट लॉन्गिट्यूडनल व्यू, पेरिस्प्लेनिक रीजन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट लॉन्गिट्यूडनल व्यू, पेल्विस सुप्राप्यूबिक लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स व्यू। एक्सटेंडेड फास्ट में क्या हो जाएगा? ये 4 हो गया, बाकी राइट थोरैसिक एंड लेफ्ट थोरैसिक व्यू ऐड हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर बारकोड साइन सीन इन निमोथोरैक्स ऑन परफॉर्मिंग ई फास्ट, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर और बारकोड साइन किस में दिखता है? निमोथोरैक्स में। जब ई फास्ट करते हैं निमोथोरैक्स पेशेंट में, जब ई फास्ट करते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर और बारकोड साइन देखने को मिलता है, ठीक है। फास्ट हैज रिप्लेस्ड DPL। पहले के टाइम पे होता था DPL मतलब डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज, लेकिन अब फास्ट आगे चुका है। DPL क्या होता है भाई? डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज क्या होता है? परफॉर्म फॉर ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन पेशेंट, ठीक है। DPL इज परफॉर्म फॉर ब्लंट और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा पेशेंट, DPL इज परफॉर्म फॉर ब्लंट ट्रॉमा पेशेंट, ओके। कैथेटर इज इंसर्टेड थ्रू वर्टिकल इंफ्राअम्बिलिकल मिडलाइन इंसिजन एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पेल्विस। कैथेटर कहाँ से इंसर्ट करते थे? अम्बिलिकल में मिड लाइन से इंसाइज करके फिर उसको पेल्विक के साइड आगे धक्का देते थे। एस्पिरेशन इज डन एंड 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सेलाइन और रिंगल लैक्टोएट इज अटैच टू द कैथेटर। इंसिजन करके उसमें 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन या फिर रिंगल लैक्टोएट डाल देते थे। इफ्लुएंट और लवाज फ्लूइड इज कलेक्टेड एंड सेंट फॉर एग्जामिनेशन। फिर जो लवाज फ्लूइड आता था या फिर इफ्लुएंट आता था उसको कलेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए भेज देते थे, ठीक है। पॉजिटिव DPL क्या होता है भाई? DPL कैसे पता चलेगा कि जो DPL में से फ्लूइड हम निकालें वो पॉजिटिव है? मोर देन 10 ml ऑफ फ्रैंक ब्लड इज एस्पिरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी। फ्लैंक में से मोर देन 10 ml ब्लड एस्पिरेट करेंगे, ठीक है। रिटर्न इफ्लुएंट कंटेंट्स, अगर उस ब्लड में RBC इज मोर देन 1 लाख पर mmQ, WBC मोर देन 500 पर mmQ आ जाए। RBC कितना? मोर देन 1 लाख पर mmQ, WBC इज मोर देन 500 पर mmQ आ जाए फ्लैंक ब्लड जो कलेक्ट किए थे उसमें, तो समझ लेंगे कि पॉजिटिव DPL है, ओके।
प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, बाइल, फीकल और वेजिटेबल मैटर। प्रेजेंस ऑफ, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बाइल प्रेजेंट है, फीकल और वेजिटेबल मैटर प्रेजेंट है, समझेंगे पॉजिटिव डीपीएल है। ठीक है, चलो। एमाइलेज मोर देन 174 इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर। एमाइलेज कितना होना चाहिए? मोर देन 174 इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर। ठीक है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, स्टैब एंड गनशॉट वुंड। ठीक है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, स्टैब या गनशॉट वुंड। मोस्ट कॉमन इंजर्ड ऑर्गन, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। मोस्ट कॉमनली इंजर्ड organ in penetrating trauma is liver, stomach, intestine. Most common injured organ in Glasgow Coma small intestine. ठीक है, गनशॉट वुंड, सॉरी, मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन इन गनशॉट वुंड क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी इज मैंडेटरी इन गनशॉट वुंड। गनशॉट वुंड में मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और गनशॉट वुंड में एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी मैंडेटरी है भाई। गनशॉट वुंड में एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी मैंडेटरी है। चलो ठीक है। कहर साइन होता है। पेन इज ट्रांसफर टू द टिप ऑफ लेफ्ट शोल्डर बाय अ फ्रेनिक नर्व। पेन ट्रांसफर होके कहाँ जा रहा है? टिप ऑफ लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, बाय अ फ्रेनिक नर्व। इसको कौन सा साइन बोलते हैं? कहर साइन। C4 C5 फ्रेनिक नर्व C4 C5 रूट वैल्यू ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम बाई कलेक्टेड ब्लड। ओके, कहर साइन किसको बोलते हैं? पेन इज रेडिएटेड to the tip of left shoulder via phrenic nerve C4 C5 due to the irritation of under surface of diaphragm by collected blood। चलो ठीक है, इसको कहर साइन बोलेंगे। बैलेंस साइन किसको बोलेंगे? फिक्स्ड एरिया ऑफ परकसेबल डलनेस इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ड्यू टू कोगुलेटेड ब्लड। बैलेंस साइन किसे बोलेंगे? फिक्स्ड एरिया ऑफ परकसेबल डलनेस इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में कोगुलेटेड ब्लड की वजह से जो डलनेस, फिक्स्ड एरिया ऑफ परकसेबल डलनेस, जहाँ पे परकसन कर सकते हैं उस एरिया में जो परकसेबल डलनेस है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में कोगुलेटेड ब्लड की वजह से, उसको बोलते हैं बैलेंस साइन। ओके, बैलेंस ट्रॉमा, एब्डोमेन, लिवर ट्रॉमा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसे छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसे छोड़ रहा हूँ मैं, स्किप कर रहा हूँ इस पार्ट को। ओके, सीट बेल्ट इंजरी, इट इन्वॉल्व्स नेक, चेस्ट एंड एब्डोमेन। सीट बेल्ट इंजरी में क्या होता है? नेक, चेस्ट एंड एब्डोमेन। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इंजर्ड ड्यूरिंग सीट बेल्ट इंजरी मेजेंट्री। ठीक है, समटाइम्स एसोसिएटेड विथ इंजरी ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, पैनक्रियाटिको डिओडेनल इंजरीज। सीट बेल्ट इंजरी में समटाइम्स क्या होता है? इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर पैनक्रियाटो डिओडेनल इंजरी भी होता है। सीट बेल्ट इंजरी इज एसोसिएटेड विथ गट इस्कीमिया ड्यू टू टीयर इन मेजेंट्री। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सीट बेल्ट इंजरी मोस्ट कॉमनली ऑर्गन कौन सा डैमेज होता है? मेजेंट्री। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि गट इस्कीमिया हो जाता है। क्यों हो जाता है गट इस्कीमिया? क्योंकि मेजेंट्री में टीयर हो जाता है। टू टाइप्स ऑफ टीयर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल टीयर में क्या होता है? ईजिली रिपेयरेबल होता है। लॉन्गिट्यूडनल टीयर जो है सीट बेल्ट इंजरी में ईजिली रिपेयरेबल है। ब्लड सप्लाई टू बॉयल इज नॉट हेम्पर्ड। जो बॉयल में ब्लड सप्लाई हो रहा है हेम्पर्ड नहीं होता ट्रांसवर्स में, लॉन्गिट्यूडनल में। ठीक है, ट्रांसवर्स में क्या है? ब्लड सप्लाई हेम्पर्ड हो जाता है, रिक्वायरिंग रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। ट्रांसवर्स में ब्लड सप्लाई हेम्पर्ड हो जाता है, फिर रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस करना पड़ता है। चलो ठीक है भाई। ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ। ठीक है, ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ, इसके लिए एक निमोनिक है HCM। ठीक है, हाइपोथर्मिया, कोएगुलोपैथी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इनमें से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ कौन सा है भाई? तो कोएगुलोपैथी हो जाएगा। ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ का निमोनिक है HCM, हाइपोथर्मिया, कोएगुलोपैथी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ कौन सा है ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ में? कोएगुलोपैथी। चलो ठीक है। इन लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरीज दीज थ्री फॉर्म ए विशियस साइकिल इंक्रीज मोर्टेलिटी। लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरीज में हाइपोथर्मिया, कोएगुलोपैथी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है एक विशियस साइकिल बना के मोर्टेलिटी बढ़ाते हैं। सो इन अनस्टेबल पेशेंट्स डैमेज कंट्रोल सर्जरीज परफॉर्म।
सो अनस्टेबल पेशेंट में क्या करते हैं, डैमेज कंट्रोल सर्जरी हम लोग परफॉर्म करते हैं। डैमेज कंट्रोल सर्जरी, फेजेज ऑफ DCS, डैमेज कंट्रोल सर्जरी एब्रिविएटेड लेप्रोटमी। फेज 1 में क्या है, इनिशियल एक्सप्लोरेशन, रैपिड कंट्रोल ऑफ हेमरेज एंड कंटामिनेशन। ठीक है, हेमरेज कंटामिनेशन को कंट्रोल करते हैं फेज 1 में डैमेज कंट्रोल सर्जरी में। फेज 2 में क्या करते हैं, सेकेंडरी रिसक्सिटेशन करते हैं, शिफ्ट पेशेंट टू ICU फॉर 48 आवर्स में। पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर देते हैं 48 आवर्स के लिए। फिर क्या करेक्ट करेंगे, हाइपोथर्मिया कलेक्ट करेंगे, कोएगुलोपैथी कलेक्ट करेंगे, करेक्ट करेंगे, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेक्ट करेंगे। फेज 2 में हाइपोथर्मिया करेक्ट करेंगे, कोएगुलोपैथी करेक्ट करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेक्ट करेंगे। ठीक है, फेज 3 में क्या करेंगे, डेफिनेटिव ऑपरेशन। फेज 3 में क्या करेंगे, डेफिनेटिव ऑपरेशन, प्लान री एक्सप्लोरेशन, स्टोमा फॉर्मेशन प्रीफर्ड ओवर कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस। फेज 3 में क्या करेंगे, प्लान री एक्सप्लोरेशन, फिर स्टोमा फॉर्मेशन इज प्रीफर्ड ओवर कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस। डैमेज कंट्रोल सर्जरी में 3 फेज हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में इनिशियल एक्सप्लोरेशन करते हैं, इसमें रैपिड कंट्रोल ऑफ हेमरेज एंड कंटामिनेशन। ठीक है, फिर सेकेंडरी रिसक्सिटेशन करते हैं फेज 2 में, इसमें पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर देंगे 48 आवर्स के लिए, और करेक्ट क्या करेंगे, हाइपोथर्मिया, कोएगुलोपैथी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फेज 3 में डेफिनेटिव ऑपरेशन है, इसमें प्लान री एक्सप्लोरेशन करते हैं, स्टोमा फॉर्मेशन प्रीफर्ड ओवर कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस। चलो ठीक है, स्टेजेज ऑफ डैमेज कंट्रोल सर्जरी 5 स्टेज होते हैं। ठीक है, ये फेज 3 हुआ है, डैमेज कंट्रोल सर्जरी का 3 फेज हुआ है। ठीक है, और स्टेज 5 होता है डैमेज कंट्रोल सर्जरी का, 1, 2, 3, 4, 5। पेशेंट सेलेक्ट करेंगे, ऑपरेटिव कंट्रोल ऑफ हेमरेज एंड कंटामिनेशन फेज 1 हो जाएगा, ICU रिसक्सिटेशन फेज 2 हो जाएगा, डेफिनेटिव सर्जरी फेज 3 हो जाएगा, एब्डोमिनल क्लोजर। जो फेज 1 था इसमें स्टेज 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, समझ गया ना। स्टेज 5 है, फेज 3 है। जो पहला फेज है वो सेकंड स्टेज हो जाएगा, दूसरा फेज है थर्ड स्टेज हो जाएगा, तीसरा फेज है फोर्थ स्टेज हो जाएगा, फिफ्थ स्टेज में क्या है, एब्डोमिनल क्लोजर। चलो, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, नॉर्मल इंट्रा एब्डोमिनल कंपार्टमेंट प्रेशर कितना होता है, 5 to 7 mmHg। लेकिन अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है मोर देन 12 mmHg, मोर देन या इक्वल टू 12 mmHg हो जाए तो उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। नॉर्मल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कितना होता है, 5 to 7 mmHg। एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम कब बोलेंगे, जब इंट्रा एब्डोमिन का प्रेशर मोर देन इक्वल टू 12 mmHg हो जाए तो। इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन होता है वो। एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम कब बोलेंगे, मोर देन 20 mmHg जब हो जाए तो। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नॉर्मल रहता है 5 to 7 mmHg। अगर मोर देन इक्वल टू 12 mmHg हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन। एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम कब बोलेंगे, जब मोर देन 20 mmHg हो जाए प्रेशर तो। एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम कॉजेज कंप्रेशन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स। एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम कॉजेज कंप्रेशन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स। इससे क्या होता है, पल्मोनरी फेलियर एंड मेजेंट्रिक वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज। एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम से पल्मोनरी फेलियर होता है और मेजेंट्रिक वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज होता है। फिजियोलॉजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ACS। ठीक है, फिजियोलॉजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। डिक्रीज क्या क्या डिक्रीज होगा भाई, डिक्रीज वीनस रिटर्न तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, GFR डिक्रीज होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, विशल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर हाइपोटेंशन होगा, इससे ओलिगो यूरिया होगा, फिर एन्यूरिया होगा। ठीक है, समझ गया ना। ACS में क्या क्या चीज़ डिक्रीज होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, GFR डिक्रीज होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, विशल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, फिर हाइपोटेंशन होगा, फिर पहले ओलिगोयूरिया होगा, फिर एन्यूरिया होगा। अब इंक्रीज क्या क्या होगा, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। ठीक है, इंस्पायरेटरी प्रेशर पीक पे होगा जिससे हाइपोक्सिया हाइपरकैप्निया होगा। PCWP पल्मोनरी कैपिलरी विथ प्रेशर इंक्रीज होगा, इंट्राप्लूरल प्रेशर इंक्रीज होगा, CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर इंक्रीज होगा, कार्डियक रेट इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, कार्डियक रेट इंक्रीज होगा, याद रखना, कार्डियक रेट इंक्रीज होगा, याद रखना। सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, निमोनिक पिक्स ACS इंक्रीज होगा। ठीक है, पिक्स ACS इंक्रीज होगा, पर पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर
I for intraarterial pressure, C for CBP, S for SVR, A for चलो पिक्स ACS याद रखना। चलो भाई क्लियर है। डायग्नोसिस, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम को डायग्नोस कैसे करेंगे? यूरिनरी ब्लैडर कैथेटर, गोल्ड स्टैंडर्ड इनडायरेक्ट डायग्नोसिस मेथड। यूरिनरी ब्लैडर कैथेटर, diagnosis of abdominal compartment syndrome, urinary bladder catheter is gold standard indirect diagnosis method। ठीक है, ये मेजर करता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को। चलो क्लियर है। ग्रेडिंग ऑफ एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, 4 ग्रेड होता है एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, 1 2 3 4। बताया कि मोर देन 12 से ज़्यादा है mmHg से अगर ज़्यादा है प्रेशर तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ग्रेडिंग। 12 से 15 फर्स्ट, इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स कुछ नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट में नॉर्मल वॉल्यूमिक रिसैक्सिटेशन करते हैं। सेकंड ग्रेड में क्या है? 16 से 20। ठीक है, ओलिगोयूरिया स्प्लैंक्निक हाइपोपरफ्यूजन होगा, इसमें हाइपोवॉल्यूमिक रिसैक्सिटेशन करते हैं। 21 से 25 थर्ड ग्रेड हो जाएगा। एन्यूरिया, वेंटिलेशन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसमें डिकम्प्रेशन करते हैं। मोर देन 25 mmHg है अगर तो इसमें ये फोर्थ ग्रेड है, इसमें एन्यूरिया, वेंटिलेशन प्रेशर इंक्रीज होगा और PO2 डिक्रीज हो जाएगा। इसमें इमरजेंसी री एक्सप्लोरेशन करते हैं। चलो, रीनल ट्रॉमा, मोस्ट कॉमन इंजर्ड पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन रीनल ट्रॉमा, किडनी। किडनी इज द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रीनल ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रीनल ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी सिस्टम इंजरी, बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ ट्रॉमेटिक यूरिनरी सिस्टम इंजरी, हेमाचूरिया। हेमाचूरिया इज द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी, ट्रॉमेटिक यूरिनरी सिस्टम इंजरी। हेमाचूरिया इज द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ ट्रॉमेटिक यूरिनरी सिस्टम इंजरी, बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ ट्रॉमेटिक यूरिनरी सिस्टम इंजरी, हेमाचूरिया। Diagnosis investigation of choice for diagnosis of renal injury is for stable patient, CCT। Diagnosis investigation of choice for diagnosis of renal injuries of stable patient, CCT। Investigation of choice for diagnosis of renal injuries for unstable patient, अनस्टेबल पेशेंट में सिंगल शॉट IVP हो जाएगा, स्टेबल पेशेंट में CCT होगा। डायग्नोसिस ऑफ रीनल इंजरीज फॉर स्टेबल पेशेंट, CCT। अनस्टेबल पेशेंट अगर रीनल ट्रॉमा के लिए डायग्नोस कर रहे हैं अनस्टेबल पेशेंट में तो सिंगल शॉट IVP। शॉक, क्लिनिकल सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। शॉक को डिफाइन कैसे करेंगे? क्लिनिकल सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। कॉज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम, बॉडी सोडियम और वाटर। कॉज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम, बॉडी सोडियम और वाटर। मिनट यूरिन आउटपुट, एडल्ट 1 मिलीलीटर पर मिनट, 60 ml पर आवर। बच्चों में 0.5 to 1 ml पर मिनट, 30 to 60 ml पर आवर। ठीक है। बेस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन, यूरिन आउटपुट। बेस्ट इंडिकेटर टू डिटेक्ट फ्लूइड रिक्वायरमेंट फॉर रिसैक्सिटेशन, CBP, सेंट्रल वेनस प्रेशर। ATLS classification of hypovolemic shock. Shock grade 1 2 3 4. Okay. ब्लड लॉस 0 to 15% होगा, ये ग्रेड 1 में होगा। ठीक है। शॉक ग्रेड 1 में क्या क्या आएगा? ब्लड लॉस 0 to 15%, पल्स रेट लेस देन 100 पर मिनट, BP नॉर्मल रहेगा, यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर मिनट, फ्लूइड क्रिस्टलॉइड्स देंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ शॉक में क्या होगा? ब्लड लॉस 15 to 30%, PR पल्स रेट मोर देन 100, वन में ग्रेड 1 में लेस देन 100, ग्रेड 2 में मोर देन 100। ओके। BP नॉर्मल, यूरिन आउटपुट 20 to 30 ml पर मिनट, फ्लूइड क्रिस्टलॉइड्स लेंगे। ओके। ग्रेड 3 में क्या है? 30 to 40% ब्लड लॉस, PR है मोर देन 120 पर मिनट, BP डिक्रीज होगा, यूरिन आउटपुट 5 to 15 ml पर आवर आएगा।
क्रिस्टलॉइड्स प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोनों रिकमेंड करेंगे ग्रेड 3 पेशेंट में। ग्रेड 4 पेशेंट में क्या करेंगे, शॉक के ग्रेड 4 पेशेंट में ब्लड लॉस मोर देन 40%, पल्स रेट मोर देन 140 पर मिनट, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, यूरिन आउटपुट जीरो हो जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, क्रिस्टलॉइड्स प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकमेंड करेंगे। फिजियोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक और वेरियस शॉक। शॉक कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, हाइपो एड्रिनल शॉक। 5 टाइप के शॉक होते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक, न्यूरोजेनिक, हाइपो एड्रिनल। अब सेप्टिक शॉक 2 टाइप के होते हैं, हाइपर डायनेमिक और हाइपोडायनेमिक। अर्ली शॉक होता है हाइपरडायनेमिक, फिर बाद में आता है हाइपोडायनेमिक। चलो, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में सेंट्रल वेनस प्रेशर एंड पल्मोनरी कैपिलरी विथ प्रेशर डिक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, ओके। इसके बाद SVR सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, वीनस ऑक्सीजनेशन सेचुरेशन डिक्रीज होता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में बस SVR इंक्रीज रहता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में बस SVR इंक्रीज रहता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में बस SVR इंक्रीज रहता है, बाकी सब डिक्रीज रहता है। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में CBP और CO नहीं, कार्डियोजेनिक शॉक में CBP इंक्रीज रहता है, SVR इंक्रीज रहता है और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, वेनस ऑक्सीजन सेचुरेशन डिक्रीज। कार्डियोजेनिक शॉक में SVR इंक्रीज, CBP इंक्रीज, CO डिक्रीज, वेनस ऑक्सीजन सेचुरेशन डिक्रीज। सेप्टिक शॉक में अर्ली स्टेज यानी हाइपरडायनेमिक में ये इंक्रीज होगा, CBP इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, SVR डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन वेनस ऑक्सीजन सेचुरेशन डिक्रीज होगा। हाइपोडायनेमिक यानी लेट स्टेज में CBP इंक्रीज डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, SVR इंक्रीज होगा, वेनस ऑक्सीजन सेचुरेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा। चलो ठीक है। न्यूरोजेनिक शॉक, सब कुछ डिक्रीज हो जाता है किसमें, न्यूरोजेनिक शॉक में। न्यूरोजेनिक शॉक में सब कुछ डिक्रीज हो जाता है, हाइपोएड्रिनल शॉक में SVR जो है डिक्रीज होगा और नॉर्मल रहेगा, बाकी सब डिक्रीज हो जाएगा। चलो ठीक है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट में न्यूरोजेनिक शॉक, अगर न्यूरोजेनिक शॉक है तो देर इज़ लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन रिजल्टिंग इन वैसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। अगर न्यूरोजेनिक शॉक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट में न्यूरोजेनिक शॉक है तो लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन रिजल्टिंग इन वैसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज एंड वेन। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट है, न्यूरोजेनिक शॉक है तो लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, इससे क्या होगा, आर्टरीज और वेन्स डायलेट हो जाएंगे भाई, ठीक है। चलो क्लियर है, कोई डाउट नहीं। टैकीकार्डिया प्लस कोल्ड पेरीफ्रेज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। टैकीकार्डिया प्लस कोल्ड पेरीफ्रेज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ड्यू टू ब्लड लॉस लीड्स टू वैसोकंस्ट्रिक्शन। टैकीकार्डिया प्लस कोल्ड पेरीफ्रेज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ब्रेडिकार्डिया प्लस वार्म पेरीफ्रेज न्यूरोजेनिक शॉक। चलो ओके। से शॉक इंडेक्स हार्ट रेट बाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। शॉक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, हार्ट रेट बाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। शॉक इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर, ठीक है। अब मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स क्या है, हार्ट रेट बाई मीन आर्टीरियल प्रेशर। शॉक इंडेक्स क्या था, हार्ट रेट बाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स क्या है, हार्ट रेट बाई मीन आर्टीरियल प्रेशर। मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स is better marker for mortality rate prediction. Modified shock index is better marker for mortality rate prediction.